Hello friends, welcome to Share Knowledge. So earlier we have started the geography series that is places in news. So we have already covered the part 1 for the September 2020 places in news. These places are in news for some or the other reasons. We will not delve into that. We will do it separately in the current affairs, but we will focus on the geographical locations and their importance about the maps, the locations, why these are important, and their surrounding areas and the things like that that we can cover from our atlas. Also we will start today the BIMSTEC. So BIMSTEC is a Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. So there are 7 countries here in the BIMSTEC organization from the South Asia and Southeast Asia. There are countries which are surrounding majorly in the Bay of Bengal, except for Nepal and Bhutan, but there is also the connectivity between the maritime and the littoral countries. So there are members like India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, and also Sri Lanka. So if some question comes in the prelims about which are the countries, which pair of groups is the member of BIMSTEC. So first of all, the hint is Bay of Bengal. So countries should be near or in the line of Bay of Bengal, the maritime border, except Nepal and Bhutan, because that is with the India, so we can learn easily. So like option comes Maldives and Pakistan or Afghanistan, because these countries are the members in the SARC. So we may confuse, but it's very easy to remember because that are in the west side of the India. So these are not mostly the countries in the east or the central part, like Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand. So BIMSTEC was founded by the Bangladesh initially, and headquarter of Bangladesh is in Bangladesh, but it was earlier known as BISTEC before joining of the Myanmar. Myanmar has joined later, and then it is called as BIMSTEC. So I think this is clear about BIMSTEC, because what is the working of BIMSTEC we will cover in the international organizations, but in the perspective of maps or the places and the locations, it is all okay. Next we will cover the Red Sea. We will also cover the adjacent countries and the straits regarding the Red Sea. So we can see it is between Africa and Asia. At least you should know some continents कि वो कौन से continent को टच करता है, बिकॉज अगर कोई यूरोपियन कंट्री यहाँ पर हमें दे दें कि इट ऑल्सो मेक्स द बॉर्डर, सो इट इज़ quite important to know the continents at least. So about Red Sea, तो Red Sea को हम Erythraean Sea भी कहते हैं, because it is a sea water inlet of the Indian Ocean. First thing we have to remember in our mind is it is the inlet of Indian Ocean lying between Africa and Asia, as I have told you. Then connection to the ocean is in the south through the Babel Mandeb. तो ये एक जो strait है, that is Babel Mandeb and the Gulf of Aden. We can see here, this is Gulf of Aden, and this is Babel Mandeb. This is ये है जो है strait. So to the north lie the Sinai Peninsula. ये है हमारा Sinai Peninsula, the Gulf of Aqaba and the Gulf of Suez, so leading to the Suez Canal. इसकी जो bordering countries हैं, these are ईस्टर्न शोर पे जो हैं वो हम कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसको याद करना आसान है. ईस्टर्न शोर पे हमारी जो कंट्रीज़ होंगी वो एशिया वाली होंगी, और वेस्टर्न शोर पे जो है वो अफ्रीका वाली होंगी. एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट एशिया और अफ्रीका के बीच में ये बनाता है बॉर्डर. सो ईस्टर्न शोर पे जो कंट्रीज़ हैं, दीज आर
सऊदी अरेबिया, ओके, देन यमन, और जो वेस्टर्न शोर पे है दैट इज़ इजिप्ट एंड सूडान, और इरिटेरिया भी है यहाँ पर, और ये है जिबूती। तो ये हमारी हैं कंट्रीज़। तो इजीली हम लर्न कर सकते हैं कि रेड सी पे जो कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न शोर पे जो हमारी सऊदी अरेबिया है और यमन, और इजिप्ट, सूडान, एरिटेरिया और जिबूती हमारी वेस्टर्न शोर पे है। तो काफ़ी इजी है हमें लर्न करना है इसको। तो नेक्स्ट वी विल कवर Baltic Sea. Baltic Sea is the border by the coast of Germany, Denmark, Poland. So Baltic Sea of course is in Europe. तो इसको हम कंट्रीज़ लर्न कर लेते हैं, कौन सी हमारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। ये हमारा है बाल्टिक सी, और यहाँ जो हमारी कंट्रीज़ हैं दीज आर Germany, we have Germany here, and then Poland, Lithuania, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। तो ये हमारी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे बाल्टिक सी को टच करती हैं। वी हैव कवर्ड डेनमार्क ऑल्सो, दिस इज़ डेनमार्क, राइट। और वी हैव बॉर्डर्ड बाय द कोस्ट ऑफ जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया also somewhere here, and एस्टोनिया, दिस इज़ रशिया, बिकॉज ये जो बॉर्डर है गल्फ ऑफ फिनलैंड का, ये रशिया के साथ टच कर रहा है, राइट। लाटविया एंड लिथुआनिया। तो गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है, ये भी हमें थोड़ा सा देखना है। दैट इज़ गल्फ ऑफ बोथनिया, जो एक्चुअली स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। और वी ऑल्सो हैव कवर्ड गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है, राइट। और ये रशिया को टच कर रही है। ऑल्सो वी कैन सी हेयर some other location, I think it's all about Gulf of Riga also, Riga if sometime in news. So ये बाल्टिक सी के नज़दीक है गल्फ ऑफ रीगा, ये थोड़ी छोटी है, और उसके साथ एक गल्फ ऑफ फिनलैंड इज़ लिटिल लॉन्गर, एंड गल्फ ऑफ बोथनिया एक लार्ज है। तो इसको थोड़ा हमें माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो हमें समझ में आना भी चाहिए। Next we have the SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. So SCO एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। तो यूरेशियन मीन्स एशिया और यूरोप के बीच में है। तो किस तरह का अलायंस है ये? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। जैसे हमने बिम्स्टेक किया था, इट वाज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, तो उसमें ट्रेड वगैरह पे हम काफ़ी फोकस कर रहे थे, या फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी। तो एससीओ यूरेशियन है, वन थिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। तो अगर सिक्योरिटी अलायंस है तो इम्पॉर्टेंट है। और इसकी क्रिएशन हुई थी 2001 में शंघाई में, और चाइना इसका लीडर है, चाइना। तो उसके साथ हमारे जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी हैं। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बीजिंग, चाइना में, क्योंकि ये चाइना में फाउंड हुआ था। लेकिन ये फाउंड शंघाई में हुआ था, लेकिन हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। ये बात थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए। तो एससीओ में 8 मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया पहले इसका पार्ट नहीं था, एज व्हेन इट वाज फाउंडेड, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो लेटर इट हैव ज्वाइंट। सो ऑब्जर्वर स्टेट्स में अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया भी हैं। तो ये हमारे मैप में हमें दिख रहा है रशिया, राइट। इसमें रशिया के साथ है हमारे पास तजाकिस्तान, जो रेड कलर में है, ठीक है। रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट वी हैव about SCO. This is a mind map about that Shanghai Cooperation Organization. We can zoom it for that. So background, we have already covered that it was announced in 15 June 2001 in China, and founding fathers are Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia,
Tajikistan and Uzbekistan, they may confuse us in the Pakistan and India. They are not the founding fathers. Then India and Pakistan joined in 2017. कहाँ पे? जब अस्ताना कजाकिस्तान में इसका मीटिंग हुआ था. एंड इसके गोल्स क्या हैं, क्योंकि अगर मेंस में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है वी कैन राइट. सो फर्स्ट थिंग तो स्ट्रेंथनिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरिंग नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट, बिकॉज सिक्योरिटी अलायंस भी है ये. तो मूविंग टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ rational political and economic order, security and stability in the region, masking joint efforts to maintain and ensure peace, and to promote effective cooperation from politics, trade, economy and environmental protection. It's all we have covered that किस तरह की ये बॉडी है. अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन में क्या क्या है, जैसे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन होना चाहिए, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन हम करेंगे एक दूसरे के साथ, और ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? वी हैव सम सिग्निफिकेंस, दैट इज़ नॉट टू यूज़ फोर्स. हम फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, राइट. नॉट टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट ईच अदर, एंड सेटलमेंट ऑफ इश्यूज थ्रू कंसल्टेशंस हम करेंगे. कंसल्टेशन एक दूसरे के साथ करेंगे. तो ये फोर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जितने भी मेंबर्स हैं एनसीओ में. तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो क्वालिटी रहती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की. दूसरी बात है सिग्निफिकेंट फोरम हमें मिल जाता है जहाँ पर हम एड्रेस कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल कंसर्न्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक. और इसके जो मेंबर्स हैं दीज आर रिच विद नेचुरल रिसोर्सेज. ऑब्वियसली जब हम ऐसे मेंबर्स के साथ जो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज में रिच हैं उनके साथ हमारा फ्रेंडशिप अच्छा है, हमारे कोऑपरेशन अच्छे हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के फैक्ट से भी देखते हैं, तो इट ऑल्सो सर्व द ऑल नेशन. लाइक इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही देखें तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है जितने बाकी कंट्रीज़ में हैं, लाइक रशिया, ये जो कज़ाकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज़ में. तो हमें एनर्जी फुलफिलमेंट रहती है यहाँ से. So making the region peaceful including respecting each other's independence and sovereignty. तो ये है इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस इसकी. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि शंघाई में फाउंड हुआ था. इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में ही है लेकिन बीजिंग में है. तो 17th एनुअल समिट 2017 इसका अस्ताना में हुआ था. क्योंकि 17th इसलिए पूछ सकते हैं 2017 वाला क्योंकि इंडिया इसका पार्ट बना था. हम कई बार बोलते हैं कि करंट अफेयर्स के काफ़ी पुराने क्वेश्चंस आए, तो ऐसा नहीं होता है. इट इज़ सम स्टैटिक नॉलेज ऑलरेडी. सो 18th एनुअल समिट जो हुआ था इसका क्वेंडिया चाइना में ही हुआ था. और कुछ इंडिया के रिलेटेड एससीओ के बारे में हम जान सकते हैं कि इंडिया वुड बेनिफिट फ्रॉम द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. जो रैट्स है दैट इज़ बेस्ड इन ताशकंद में है, रशिया के ताशकंद. तो यहाँ पर हमें इंडिया को भी बेनिफिट मिल रहा है कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बिहाफ से. तो बूस्ट टू इंडियाज़ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, क्योंकि इंडिया कभी इस ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस पे वर्क करता है. तो हम अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो उसके लिए भी हम कनेक्ट करने के लिए काफ़ी काम करते हैं. तो एससीओ हमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इसके लिए टू कनेक्ट द सेंट्रल एशिया. और इट प्रोवाइड्स इंडिया विद द मार्केट फॉर इट्स आईटी, क्योंकि इंडिया में आईटी का बहुत अच्छा बूम रहता है, तो हमें मार्केट भी चाहिए उसके लिए. तो टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वी कैन एक्सपोर्ट आवर सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स, राइट. सो इंडिया वुड एंटर इनटू यूरेशियन मार्केट बाय सीकिंग an early conclusion of a free trade agreement with the Eurasian Economic Forum. तो यहाँ पर भी इंडिया एंटर कर सकता है यूरेशियन मार्केट में, जो FTA है. उसके साथ ही गेट ग्रेटर एक्सेस टू मेजर गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन. हमें जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़, कुछ एरिया मैरी टाइम हमें वहाँ मिल जाता है जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो सेंट्रल एशिया में इस तरह के प्रोजेक्ट अगर रहते हैं तो इंडिया कैन बेनिफिट इन दैट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. सो आई थिंक इट्स all clear for the Shanghai Cooperation Organization. So next we will cover
next in next session the South America. Otherwise I will just tell you South America में जो भी countries हैं almost these are maritime countries, or we can say they have the coastal border. Only there are two countries. These are Bolivia. This is Bolivia and Paraguay. These are only the landlocked countries. They don't have any access to sea. Otherwise all the countries are in the bordering state like Argentina, these all here. तो this is very important fact about this. और अगर हम मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को साथ में बात करें साउथ अमेरिका के, तो हम बोल देते हैं लैटिन अमेरिका. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द map series that we have started, the part 2 of the September 2020 current affairs, that places in news. So the rest of the places we will cover in the next video. So I hope you have liked this video. So please like and subscribe the channel. Thank you.